These girls, playing outside their huts in the heart of Jharkhand's tribal lands, don't know that their land is famous for all the wrong reasons. Even if you were to informally mention the word Delhi to them, a pall of gloom descends among the girls. There are hushed whispers that exchange stories of what happens to girls who are taken away, most often to Delhi. Jharkhand is a state in eastern India. Jharkhand has been at the center of the Naxalite Maoist insurgency, one of the key factors that leads to the state remaining in poverty. Although rich in mineral and natural resources, the federal government's monopoly on subsurface resources in Jharkhand keeps the tribal population away from staking a claim on the resources. This leads to a vicious circle of poverty, one of the key factors that allows for families to sell their girls to traffickers. हाँ, गरीबी के चलते ही माँ बाप उत्साहित करते हैं बच्चों को जाओ तुम कमाने के लिए। कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। हाँ कि पराया लड़के हमको लगते हैं कि बाहर नहीं जा सकते। देखिए अब गांव में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करबे नहीं किए तो रांची में कहाँ से रोजगार मिलेगा। ऐसे तो जहाँ भी हमें सूचना मिलती है हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं। ऐसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी हैं यहाँ बहुत सारे। काम भी बहुत हो रहा है पुलिस की तरफ से भी, हम लोगों की तरफ से भी, NGOs भी कुछ काम कर रहे हैं इसमें। लेकिन मुझे लगता है जब तक यहाँ रोजगार का सृजन नहीं होगा तब तक इस समस्या को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता और जो झारखंड के भी जो शहर हैं उससे गांव बहुत अलग थलग पड़ जाते हैं। यातायात की सुविधा सही ढंग से नहीं है या सड़कें अच्छी नहीं है या सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों की महिलाएं रोज, जैसे मुंबई में या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में लोकल ट्रेन्स वगैरह होते हैं तो दूर दराज के इलाके से भी, ग्रामीण इलाकों से भी महिलाएं आ जाती हैं शहर में, दिन भर काम करके चली जाती हैं। या गांव या शहर के जो व्यापारी होते हैं वो भी बहुत सारा काम लेके गांव में जाते हैं, वहाँ से काम करा के कलेक्ट करके ले आते हैं, रोजगार मिल जाता है अपने ही स्टेट में। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, तो हम लोग इस दिशा में भी सरकार से बातचीत करते हैं कि उनके लिए रोजगार का सृजन किया जाए ताकि वो बाहर न जाए। और Human trafficking industry or the modern slavery industry is a multi-billion dollar industry worldwide. Around 21 million people are slaves across the world. It's not the problem of developing countries, but it's the problem of developed countries as well. Whether it's US, whether it's Asia, whether it's Europe, whether it's Australia, everywhere we have victims and we have traffickers. This is one of the industry where both the traffickers and victims are, majority of them are females. In India, trafficking is reaching the endemic proportions. In Jharkhand alone, every year around 100,000 girls are trafficked. Most of these states which have tribal population have huge trafficking problem. 80% of the trafficking victims are tribal girls in India. Jharkhand appears to be a hub for the business of selling girls, and it looks to be true that nearly everyone and their neighbor in the state seems to have a role to play in the trade, either through active participation or silent complicity. One way or the other, it is the girls in the state that are bearing the brunt of this trade. छोटे एरिया में जाइएगा, कन्विंस भी करिएगा तो नहीं समझेगा। और उसके मन में बैठा हुआ है कि ये क्या करेगा, टोकरी बिनवा के, झोला बिनवा के, मछली पलवा के हमको क्या करेगा। बच्चों को तो लाइटेड चीज़ अच्छा लगता है ना, वो ट्रैफिक करा के कितना अच्छा अच्छा दिखाते हैं, दिल्ली कुतुब मीनार फलाना, अच्छा अच्छा कपड़ा, ड्रेस, बैग, तो बच्चे लालच में तो आएंगे ही। आप तो सादगी और क्या बोलते हैं कर्मठता की बात पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। उनको ताम झाम गाना नाच ये सब होता है और दिखाने का चीज़ नहीं है। आप खुद ही आइए, मैं सारा चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे ले जाते हैं और कैसे वहाँ होते हैं। हमको कठिनाई होती है जब हम वहाँ लाने जाते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन बच्चे मुझे समझते हैं। और ये होता भी है, CWC जाओ, फिर थाना लाओ, फिर रिजर्वेशन करके लाओ, फिर यहाँ कोर्ट में पेश करो, ये करो। इतना देर में वो हमको समझती है कि ये हमारा वेल विशर नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चे की आज़ादी खत्म हो जाती है। वह
कोई उसको छेड़ने वाला नहीं, तो झाड़ू पोछा की, अपना खाई पी, और ट्रैफिकर भैया जो समझा दिया सो समझ लो। तो भाषा का समस्या है तो कन्विंस नहीं कर पाते हैं। दूसरा बात है, यहाँ के फैमिली में देखिएगा आप कल्चर में कि 2-3 शादी औरत भी करती है, मर्द भी करते हैं। अच्छा। अगर 3 बच्चे का भी माँ है, कुटी में बहुत गजब कल्चर है, 3 बच्चे हो गए, शादी नहीं हुआ। अच्छा। बिना शादी को उसके 3 बच्चे हो गए। किसके बच्चे हैं, कौन है उसका, कोई बाप का नाम का कोई हिसाब किताब नहीं। और ये बच्चे अननोन पलते रहते हैं। और वो बच्चे हैं, जैसे माँ शादी की तो 2 बच्चा उधर का, 2 बच्चा इधर का, 4 बच्चा हो गया। अब माँ मजबूत है तो मर्दाना के बच्चा नेगलेक्ट हुआ, अगर बाप मजबूत है तो औरत के बच्चा नेगलेक्ट हुआ। तो बाप बोलेगा कि हम कहाँ से खिले वो 4 बच्चा हुआ। इसके चलते इतना बढ़िया मार्केट बना हुआ है उसका, जैसे चचेरी, दादी, काकी, चाची, जस्ट लाइक एक बकरी पालन होता है ना, उस तरह से ये लोग बच्चों को पालना शुरू कर देते हैं। 8 साल 10 साल जो भी बच्ची है उसको कोई नेबर, दादी, काकी माँ, मौसी माँ, बड़ा माई, छोटा माई जो कह के पुकारे वही उसको पालेगी। अब पाल के वही ट्रैफिकिंग कराएगी। वो इतने घुले मिले रहते हैं कि वो तो विरोध भी नहीं कर पाएगी कि हमको दादी कहाँ ले जा रही है या मौसी दादी कहाँ ले जा रही है। जितने बच्चे को लाए हैं उसकी अपनी माँ नहीं होती, और माँ के बारे में बोलेगी कि माँ मरा गेलो, मतलब मर गई, बाप मुड़ा गेलो। ये लोग का माँ बाप छोड़ के चल जाता है ना, तो कहता है कि कमान कर दिए, मतलब श्राद्ध कर दिए। तो ये कभी नहीं करते हैं, जबकि आने के बाद बहुत बच्चों में ऐसा होता है सबका माँ बाप जिंदा है और बाप बाप भी करता है, वहाँ लिखा देती है स्वर्गीय। अभी भी एक जीक पानी की बच्चियाँ ही बोलते माँ बाप नहीं है, नहीं है, बोली मर गया, नहीं है। फिर हम बोले पूछे तो बोली माँ ब्याह करके चल गई, बाप भी ब्याह कर लिया। Many young girls are lured by traffickers under the pretext of the promise of a good life. Some are lured with good clothes, food, and toys, and some with the added false promise of money for their families. Once they are trafficked, the girls are sold to agents who may take them anywhere across the country, from Delhi to Chennai, Punjab to Goa, and everywhere in between. In some instances, the girls are trafficked beyond India as well, particularly to the Middle East. The girls are subjected to physical and sexual abuse and are even enslaved as bonded laborers. Some are kidnapped as brides and taken to states where there is a skewed sex ratio. Still others are taken as organ donors, surrogate mothers, and sex slaves. Wherever they are, to the families and community back home, they disappeared without a trace. The girls are trafficked for domestic labor to all the big cities where they work for 12 to 14 hours every day, prostitution, organ trade, and recently there are incidents where they have been trafficked for surrogacy, where they deliver babies and babies are sold off. Major reasons which drive this human trafficking in tribal areas are illiteracy, poverty, lack of sustainable employment opportunities, where parents are unable to afford 2 meals a day for their kids, which makes the kids fall into the trap of traffickers, because the traffickers show them that there is a better life outside the village, and thus leads to an unsafe migration. Aham Tribal Development Foundation believes in preventing the human trafficking problem at the grassroots level. We believe that we need to have leaders within the community. We need to have strong mothers, because we feel that strong mothers and financially independent mothers can be the first people to stop the daughters from falling into the trap of trafficking. We run lots of mentoring programs for the girls, which starts from college level and goes up to the 9-year-old girl in village who studies in class 5th or 6th. It's an organized crime, and we all need to be united. It's not a work of one organization or one government. Everybody, all the stakeholders, whether it's the media, whether it's the police, whether it's the administration,
whether it's international agencies, everybody needs to unite it to fight against trafficking. In many parts of Jharkhand, a greater premium is placed on livestock rather than children, poverty being the guiding factor. There are many girls who have gone missing over about 30 years now, and none of them have been traced or returned home. कई बार ना घर वाले ही अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। मान लीजिए उनको लगता है कि बारिश के दिनों में खेती हो गई और बाकी समय में कोई काम नहीं है, तो पेट भरने की समस्या आती है, तो कई बार पूरा परिवार माइग्रेट करता है और कई बार घर की जो लड़की होती है या लड़का होता है वो बाहर कमाने जाता है। तो इसमें परिवार की भी सहमति होती है, तो कई बार जो दलाल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको भी बचा लेते हैं परिवार वाले, क्योंकि उनको लगता है ये तो हमें रोजगार दे रहा है। और यही चीज़ अगर यहीं पर रोजगार का सृजन हो जाए, उनको घर बैठे काम मिले, तो कोई भी परिवार अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजेगा। तट बचा हुआ तो कहेगा कि भैया भेज दे दिल्ली 5,000 के महीना, तो ही दारू के फैक्ट्री खोल दी है, उसको भी लालच देता है। और ना बहुत सीधा आदमी सब, भले हमारी बात से कन्विंस नहीं हो, लेकिन आपस में एक दूसरे से जानता है कि ठगा गया फलाना आदमी, हमने भेजे, वो नहीं, वो भी उसी के झांसे में होता तो सीधा है, रास्ता देखता है। बच्ची को जब रेस्क्यू करके लाते हैं कहते मैडम काहे लाए और क्यों नहीं लाते, वो तुमको ये कर नहीं, 11 महीना होता तो दे देता ना पैसा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानों की तस्करी जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है ड्रग्स और आर्म्स के क्राइम्स के बाद। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में छोटे छोटे गाँव में जो गरीब परिवारों की बच्चियां हैं उनको बहला के फुसला के एक शहरों में एक चमचमाती ज़िंदगी की गलत आशा देकर बच्चियों को लोकल एजेंट के थ्रू $50 या कम से पेरेंट्स जो हैं वो बेच देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो बेच रहे हैं, पर $50 से कम की कीमत में इन बच्चियों को बेच दिया जाता है। बच्चियां शहर आ जाती हैं और $600 या $700 के कीमत के लिए इन्हें शहर में अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है या कई बार देश के बाहर इन बच्चियों को बेच दिया जाता है। इस समस्या से डील करने के लिए भारत सरकार ने क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 370 को रिप्लेस कर दिया और एक नया सेक्शन 370 हमारे सामने आया। सेक्शन 370 कहता है कि कोई भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति को रखना, उसका ट्रांसफ़र करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको रिक्रूट करना, चाहे वो फोर्स से हो, चाहे किडनैप करके हो, चाहे एब्डक्शन से हो, चाहे गलत इन्फॉर्मेशन देकर हो, किसी भी प्रकार से ये सारे जो हैं प्रोविजंस जो हैं वो ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आ सकते हैं। इंडिया में आज तकलीफ़ लॉ की नहीं है, मेजर चैलेंज जो है वो एनफोर्समेंट है। हर एक 8 मिनट में एक बच्चा जो है इंडिया में मिसिंग पाया जाता है। ट्रैफिकिंग से लड़कियां, बच्चे सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन 90% जो हैं वो यंग गर्ल्स और चिल्ड्रन के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। Jharkhand appears to be a hub of sorts, especially because the state comprises a massive tribal populace, and there is very meager record keeping in place. Most trafficking instances are either ignored or unaccounted for in the tribal hinterland. The root of all trafficking ultimately remains poverty and marginalization. The tribal hinterland in Jharkhand is filled with a population that lives in poverty and hunger, not to forget the lack of education and employability. Some villages have no teenagers left. Either they have been trafficked or have left the land in pursuit of greener pastures. The neglect of the tribal populace in the region has culminated in a social climate where luring youngsters with the promise of a bright future has come to be accepted.